Welcome to Kurukshetra Bhumi News. The Olive School, Thol successfully hosts CBSE Cluster 16 Boys Kho-Kho Championship. Thol, Kurukshetra, the 26th of July 2026. The 3-day CBSE Cluster 16 Boys Kho-Kho Championship, held at the Olive School, Thol, from 24 to the 26th of July 2026, concluded successfully in a grand and memorable manner. A total of 28 teams from Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh and other regions participated in the championship and showcased outstanding sportsmanship, discipline and talent. The closing ceremony was graced by the presence of Mr. Suresh Sharma, Advisor, Kho-Kho India, Mr. Manish Joshi, Chairman, Kho-Kho India Referee Board, Mr. Mahinder Singh, ex-EEO, Haryana Referee Board and Technical Official Mr. Shamsher Singh. Their gracious presence added dignity and splendor to the occasion. The school's chairperson, Mrs. Sarita Manuja, school director Mr. K.L. Manuja and principal, Mrs. Sunita, congratulated all the winning and participating teams. They emphasized that sports play a vital role in developing discipline, self-confidence, leadership qualities and team spirit among students. They also expressed their sincere gratitude to all the officials, referees, coaches and members of the school staff who contributed to the successful conduct of the championship. The successful execution of the tournament was made possible through the dedicated efforts of the school's coaches, Mr. Rajender and Mr. Dinesh, who played a significant role in its smooth conduct. The special contribution of the entire sports family, including Naveen, Mukesh, Savita, Muskan, Ravinder, Anil, Randeep, Manish and Vishal, along with the entire school staff, was highly appreciated. Tournament results. Under 14 boys category. First position, Sharda Public School, Fatehabad. Second position, Sir Jawahar Singh Public School, Mustafabad. Third position, R.S. Vidyapeeth, Hisar. Third position, Maharishi Dayanand Vidyalaya, Chandigarh. Under 17 boys category. First position, Nara Ranchal, Kathal. Second position, Royal International School, Kharakheri. Third position, Sharda Public School, Fatehabad. Third position, RKIS, Himachal Pradesh. Under 19 boys category. First position, Kharia Public School, Sirsa. Second position, Angel Public School, Ambala. Third position, Guru Nanak Public School, Pantoka Sahib. Third position, Maharishi Dayanand Vidyalaya, Chandigarh. During the closing ceremony, the winning teams were presented with trophies and felicitated for their outstanding performances. The championship, organized by the Olive School, Thol, stood as an excellent example of sportsmanship, discipline, teamwork and national unity. The school management expressed its heartfelt gratitude to all the participating schools, officials, referees and supporting staff for their valuable contribution and cooperation. The school reiterated its commitment to organizing and hosting more such prestigious national-level sporting events successfully in the future. भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसी तरह से शमशेर सिंह डल जी हैं जो हमारे NIS के मेंबर्स हैं। मिस्टर नवीन कुमार जो DPE हैं। मुस्कान NIS की नर्सरी कोच हैं हमारी। और रणदीप सिंह जी जो DPE कैथल से हैं। और अनिल सर जो DPE वो भी कैथल से हैं। इन्होंने, मैं कहता हूँ, इन्होंने जो जितना अच्छा काम करा है, आज टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि इनके बारे में कुछ बोला जाए, लेकिन जितना भी अच्छे से अच्छा काम हो सकता है इन सब ने मिल के करा है। और उसके साथ साथ सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स के बच्चे हैं और उनका जो रोल रहा है बड़ा कम देखने को मिला है कि स्पोर्ट्स की इवेंट में एक भी कोई कंप्लेंट ना आई हो, कोई एक भी झगड़ा ना हुआ हो। तो सब लोगों ने शुरू से जैसी बात हुई थी हम लोगों की कि एक टीम की तरह से सभी लोग, सिंगल टीम, वन टीम की तरह सभी 184 स्टूडेंट्स जो थे
डिफरेंट स्टेट से, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा योगदान करा इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए। और आज जो हमारे बीच में 4th स्टेट के मेंबर हैं, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर मिस्टर राजेश और श्री दुर्गेश शर्मा जी, खबरें हिंदुस्तान की ये इनके एडिटर इन चीफ हैं, ये सभी हमारे बीच में हैं। इन्होंने आके जो सक्सेसफुल इवेंट है उसको भी 4 चांद लगा दिए हैं। तो वी आर रियली ग्रेटफुल एंड ऑब्लाइज, एंड हमें पूरा विश्वास है कि जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो सारे ही इस स्कूल के साथ अपने आप को एसोसिएटेड रखें, तो वी विल बी ऑलवेज फीलिंग प्राउड ऑफ देम। जो काम उन्होंने करा है सभी मिलके हम एप्रिसिएशन देंगे, इनको क्लैप करेंगे इनके लिए सभी। सारे डिसिप्लिन के लिए जिम्मेवारी लेने के लिए जो आप लोगों ने काम करा है, तो खुशी मुझे ये है कि जितने भी बाहर से हमारे लोग आए हुए हैं सभी ने आपकी प्रशंसा करी है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, अदरवाइज कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन दिखाई देता। मैं ज़्यादा कुछ आज नहीं कहता क्योंकि सभी को वापस जाना है और टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं एक बार फिर इन पार्टिसिपेंट्स का, इन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का, सभी का जो यहाँ नहीं है उनका भी मैं कहूँगा एप्रिसिएशन है मेरी तरफ से, सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, सभी ऑफिशियल्स की तरफ से, सभी कोचेस की तरफ से, सभी का ही आप लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन है। और जो टीमें जीती हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जीतने वाली टीमों के लिए जो आज सारी यहाँ बैठी हम सब आपस में क्लैप करते हैं उनके लिए। 2 लाइनों फिर से कह रहा हूँ कि वेरी वेल डन, कीप इट अप, आगे भी जहाँ जाओ एक अच्छा मैसेज स्प्रेड करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक। Observers, CBSE officials, referees, coaches, distinguished guests, respected coaches, teachers, dear parents, and my dear young sports person. It is proud moment and honor to propose the vote of thanks the successful completion of the CBSE Cluster 16 Kho-Kho Boys Tournament. At the very outset, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest and all the distinguished guests for gracing the occasion with their valuable presence and encouraging our young athletes. Your presence had added MSc dignity and inspirations of their prestigious event. I express my sincere thanks to CBSE for entrusting our school with the responsibility of hosting the tournament. We are truly honored to have had the opportunity to welcome 28 teams from Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh, and witness the expansive, talented, enthusiasm, and supporting spirit of young players. My special appreciation goes to all the participants team, their principal, coaches, and teachers. Your cooperation, discipline, sportsmanship have contributed greatly to success for this tournament. I extend my sincere gratitude to the tournament officials, especially Mr. Mohinder Singh, Mr. Samsher Singh, Mr. Amit Sharma, Ravinder, Randeep, Manish, Miss Muskan, Miss Savita, Miss Mukesh, Mr. Naveen, Mr. Vishal Saini. A special word of appreciation goes to our young volunteers and students whose enthusiasm, discipline, and sense of responsibility have been exemplary. I would like to place on the record my heartfelt appreciation for all teachers, organizing committee, volunteers, sports staff, medical team, transport team, and every member of the school community who work tirelessly behind the scenes.
With these words, I once again express my sincere gratitude to everyone who contribute the grand success of the CBSE Cluster 16 Kho Boys Tournament. Thank you all for your gracious presence, cooperation and support. क्या बताना चाहेंगे? यस सर, अंडर 14 में जो टीम हमारी विजेता रही है, फर्स्ट है जो शारदा पब्लिक स्कूल फतेहाबाद, सेकंड है सर जावर सिंह पब्लिक स्कूल मुस्तफाबाद, जो थर्ड है RS विद्यापीठ हिसार, और थर्ड नंबर पे ही एक टीम रही है महर्षि दयानंद विद्यालय चंडीगढ़। तो इन दो टीमों ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। तो बच्चे पूरे अनुशासन में रहे हैं, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आई। जो रहने का, खाने का जो अरेंजमेंट। माई सेल्फ मोहिंदर सिंह, चेयरमैन रैपिड बोर्ड हरियाणा, और इस टूर्नामेंट के दौरान मैं बतौर कन्वीनर यहाँ पर मेरी सेवाएं आई थी। तो CBSE जो बोर्ड है उसके नियमानुसार ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अंडर 14, 17 और 19 बॉयज़ कैटेगरी का निर्देश प्राप्त हुए थे। तीनों ही आयु वर्ग में 28 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया है। और खेल नियम के अनुसार पहले उनको जो ना लीग मैचेस कराने होते हैं, यानी कि सबको सबके साथ खेलना होता है। गेम क्या रहा? गेम और सबको सबके साथ खेलने के बाद फिर नॉकआउट का हमारा नियम लागू होता है, जो कि आज लास्ट डे मॉर्निंग सेशन में स्टार्ट किया था। डिसिप्लिन को लेकर सभी टीमें बहुत ही बेहतरीन हैं, और इससे ये लगता है कि वो एक लेकर यहाँ पर पहुँची हैं, अच्छे ट्रेनर हैं और सारे बच्चे अच्छे गुणों से हैं। 3 दिन में हमने देखने को मिला है कि हमें संस्था में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है, न तो खेल मैदान के मिला है, न कोई किसी कैंपस में हुआ है। CBSE बोर्ड की अगर बात की जाए, आप ही के स्कूल को क्यों चुना गया? CBSE बोर्ड को अगर चाहते तो हरियाणा की ही नहीं, पूरे इंडिया के जितने भी CBSE स्कूल हैं, CBSE की गाइडलाइन है कि जो भी स्कूल इच्छा रखता है वो अपना ऑनलाइन आवेदन को दर्ज कराते हैं। उसके साथ साथ स्कूल में खेलों की किस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको साझा करते हैं जी। और CBSE मतलब जो है दिल्ली से जो है वो फिर तय करती है कि भाई ये वैल्यू जो है ना फलां गेम का वहाँ पर दे दिया जाए। तो गेम कराने के लिए क्या कुछ नियम रहते हैं? गेम का जो है जो फेडरेशन के रूल होते हैं, खो खो इंडिया के जो रूल हैं, क्योंकि सभी खेलों में फेडरेशन अलग अलग होते हैं, फेडरेशन ही रूल बनाती है। आगे CBSE हो या स्कूली टूर्नामेंट हो या कोई और सरकारी टूर्नामेंट हो, सभी के अंदर फेडरेशन के ही रूल फॉलो करने होते हैं। और उसी नियम अनुसार हम सब जो रेफरी यहाँ पर आए हुए थे, हम ये सभी मतलब क्वालिफाइड हैं, स्टेट से लेकर नेशनल से लेकर, यानी मैं खुद इंटरनेशनल मतलब क्वालिफाइड मैचेस में। तो वो सारे पैनल यहाँ पे आते हैं और बहुत स्मूथली अच्छे तरीके से सभी मैच कराए हैं, किसी भी खिलाड़ी का कोई विवाद नहीं रहा है। ठीक है, तो आज जो टीमें यहाँ पर मैच जीत कर जा रही हैं जी, जिन्होंने महारत हासिल की, वो कौन कौन सी टीमें रही? उसमें अंडर 17 में हमारे पास पोजीशन जो फर्स्ट आई है नरार अंचल स्कूल है कैथल से। ये पहले भी बेहतरीन टीम रही है और हम कई कोर्सों से देख रहे हैं कि वो नेशनल में भी मेडल लेकर आती हैं। इसी में सेकंड प्लेस जो है रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है सिरसा से, वो जो लड़का है वो NI से है, उसकी भी अच्छी टीमें रहती है। 14 में जो टीमें मैंने खेलती देखी थी, आज वही बैच उसका 19 में आया है जिन्होंने मतलब सेकंड प्लेस हासिल किया है। CBSE का ये भी मतलब रूल है कि जो सेमीफाइनल में जो टीमें हार जाती हैं, लूज़ करती हैं, तो नियम कहता है कि दोनों ही टीमों को थर्ड प्लेस यानी कि ज्वाइंट विजेता घोषित किया जाएगा और बराबर मेडल और ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे गेम से बहुत दूरी बनाए हुए हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए हमारा यही मैसेज है कि आज के दौर में खेल वो पुराने ज़माने की सभ्यता नहीं है, जबकि माता पिता कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। वो मिथ्या ही बदल दिया है। आज खेल के माध्यम से मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ है। बड़े से बड़े पदों पे मतलब सभी खिलाड़ी लगते हैं। आप मेडल लेकर आइए, सरकार आपका इंतजार करती है, चाहे आपको DSP भर्ती करना हो या आपको इंस्पेक्टर लगाना हो या किसी नौकरी पेशे में जाना हो। तो खेल जगत आज एक प्रोफेशनल है। और सबसे बड़ी मिसाल है, एक खिलाड़ी जब ग्राउंड पे आता है किसी भी ट्रेनर के पास, सबसे पहले हम ₹100 रुपये धन देते हैं, सामाजिक बुराई से उसको बचा के रखते हैं। तो ये चीज़ एक बड़ा अभियान है और कोचिज़ का हमें बार बार धन्यवाद करते हैं। आज का युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है, खेलों की तरफ नहीं। जी, इस पे क्या संदेश देना चाहिए? इस पे हमारा ये संदेश है कि मैं इसमें सोसाइटी को भी मैं थोड़ा सा सिखा चाहूँगा कि भाई जो हमारे आसपास में जो माहौल है या हमारे घर में है, हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी किधर हो जाता है तो तुरंत यानी कि टोकना चाहिए। अक्सर देखने में क्या आता है कि बच्चे किसी भी प्रकार की जिद कर लेते हैं, फ़ोन की जिद करते हैं या TV देखने की जिद करते हैं, तो माता पिता के मन में एक ही चीज़ आती है
कि मेरे पास तो एक दो बच्चा ही है, मैं इसको टोक दूं कुछ हो ना जाए, तो इस शंका से बाहर आना चाहिए। वो अपना ही बच्चा है, वैसे तो भगवान पर निर्भर है कि जो होगा होके रहेगा। उनको टोकना चाहिए और सभ्यता के अनुसार जो हमारा है उसको सिखाना चाहिए ताकि उसका जीवन बेहतर हो। सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से और ऐसे कौन से गेम बच्चों को सिखाए जाते हैं या उनको उस गेम में आगे लेकर आया जाता है? सीबीएसई जो है ना प्रत्येक वर्ष सभी खेलों का कैलेंडर जारी करता है, जिसमें 42 गेम हैं और 3 एज ग्रुप हैं, और उसमें बॉयज़ और गर्ल्स के सभी मतलब गेम कराए जाते हैं और पूरे इंडिया में ही वो ऑल आउट होते हैं। अब हमारा जो 16 क्लस्टर है, यहाँ पर 3 स्टेट के बच्चे आने थे, जिसमें कि हिमाचल है, हरियाणा है और चंडीगढ़ है। उन्हीं मतलब जिलों से मतलब हमारे पास अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया है। ये जो हम इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, ये 16th बेसिकली 16th CBSE खो खो टूर्नामेंट फॉर बॉयज़ है। और इसमें 4 स्टेट्स इस क्लस्टर में हैं। तो इस क्लस्टर के जो 4 स्टेट्स हैं वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। और ये इसमें जो स्कूल्स CBSE के खो खो में अच्छी टीमें रख रहे हैं, उन सब ने पार्टिसिपेट करा है। तो 184 students have participated from 19 different institutions of these 4 states. तो ये इवेंट्स कितने दिन का चला सर यहाँ पे? ये इवेंट 3 full days की इवेंट थी। तो इसकी प्रिपरेशन तो नेचुरली पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 24 to 26 ये फुल 3 days थी। तो सभी टीम्स के स्टे का यहाँ अरेंजमेंट था, उनके खाने का, उनके जितने भी ऑफिशियल्स CBSE की तरफ से ऑब्जर्वर आए या खो खो जो ऑल इंडिया खो खो की बॉडी है, उनके जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इनागुरेशन के टाइम पे भी प्रेजेंट थे, और जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो पूरे 3 दिन के लिए यहाँ रहे हैं। और वो सभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ही खिलाड़ी हैं। इसी तरह से जो हमारे ऑफिशियल्स आए हैं वो बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड ऑफिशियल्स हैं मतलब चल रहे हैं। तो उनमें से ज़्यादा, क्योंकि बॉयज़ की टूर्नामेंट हैं तो मेल मेंबर्स थे, लेकिन 3 ऑफिशियल्स उसमें से फीमेल कैंडिडेट्स भी गर्ल्स हैं। ये सभी जो है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अपनी एक्सीलेंस दिखाई है। ये सारे अचीवर्स हैं। और हमारे जो यहाँ अपने जो हमारे 2 स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, उनको उनमें से एक जो है वो भी नेशनल लेवल का कोच है, जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉई है। और CBSE जो है वो ये कुछ उनकी नॉर्म्स होती हैं, जो नॉर्म्स को मीट करते हैं उन्हीं स्कूल को कंसीडर करते हैं। एंड वी वर फॉर्चुनेट कि हमारे स्कूल को उन्होंने अवसर दिया, क्योंकि सर इसमें कुल 28 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अंडर 19 ने खैरिया पब्लिक स्कूल सिरसा से 1st पोजीशन ली है, एंजल पब्लिक स्कूल ने अम्बाला 2nd पोजीशन ली है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल पोंटा साहिब इन्होंने 3rd पोजीशन ली है, महर्षि दयानंद विद्यापीठ चंडीगढ़ इन्होंने भी सर 3rd पोजीशन ली है। अंडर उसमें क्या मैसेज आप बच्चों को करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ पर इस खेल में भाग लिया? सर मैं उनको भविष्य के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अब नेशनल लेवल पर भी खेलें, क्योंकि अगर वो 1st पोजीशन पर अंडर 19 में 28 टीम में से आगे निकले हैं तो और आगे जाएं सर।